रामानुजन मैथ्स एकेडमी। वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फेमस थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। उससे पहले हमें सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। ओके, उस पर बेस्ड हम एक थ्योरम देखेंगे और उसी थ्योरम का यूज हम पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So let us understand the similarity and right angle triangle with one theorem. And here is the statement that is, in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Okay, so here is the given to prove and figure of the theorem. Okay, so given में हमें क्या है, in triangle ABC angle ABC is of 90 degree. Okay, this angle B is of 90 degree and segment BD is perpendicular to the segment AC. This BD is perpendicular with segment AC. Okay, and BD is altitude and ADC means they are linear. ADC, then to prove हमें क्या प्रूव करना है। ओके, स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे सो देन के आगे वाला पार्ट जो है वो हमें प्रूव करना है। सो इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। इट मीन्स दैट हमारा जो ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल है दैट इज ABC। ओके, सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में BD। सो ये एल्टीट्यूड ड्रॉन करने की वजह से हमें और दो ट्रायंगल इसमें मिल रहे हैं। ओके, एंड विच आर दे, सो दे आर ADB, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC। ओके, सो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल ADB ये एक्चुअल ट्रायंगल के साथ में सिमिलर है, एज वेल एज ट्रायंगल BDC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। ओके, और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल है ADB और BDC ये आपस में सिमिलर है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव थ्री थिंग्स हियर, दैट इज फर्स्ट इज ट्रायंगल ADB सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC, triangle BDC is similar with triangle ABC and triangle ADB is similar with triangle BDC. Okay, so here is our proof. First of all, we choose two triangles that is ADB and ABC. Okay, हमें इन दो triangles को similar proof करना है, तो so हम कैसे करेंगे, so angle DAB is congruent with angle BAC which is common angle between these two triangles, isn't it? Angle DAB is congruent with angle BAC. ओके, अगर हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसमें कॉमन एंगल मिलेगा, है ना, विच इज कॉमन एंगल दैट इज A here. Okay, next is angle ADB is congruent with angle ABC. Here you can see angle ADB and it is congruent with angle ABC, and you can see both are of 90 degree. This B is of 90 degree and angle D is of 90 degree. Okay, so from first and second we can write triangle ADB is similar with triangle ABC by angle test। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BDC is similar with triangle ABC. So in triangle BDC and triangle ABC what you can see, एंगल BCD is congruent with एंगल ACB। इसमें फिर हमने क्या चूज किया, कॉमन एंगल ले लिया, एंगल BCD, here you can see एंगल BCD एंड एंगल ACB। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉमन एंगल। नेक्स्ट एंगल BDC is congruent with एंगल ABC, here you can see एंगल BDC is congruent with angle ABC and they are again of 90 degree. Okay, each of 90 degree. Therefore from 1 and 2 we can say triangle BDC is again similar with triangle ABC by angle test. Okay, हमने अभी तक के दो चीजें प्रूव की, कौन सी, ट्रायंगल ADB is similar with triangle ABC and triangle BDC is similar with triangle ABC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, triangle ADB is similar with triangle BDC. Okay, so
from 1 and 2 we can write triangle ADB is similar with triangle BDC from 1 and 2. How? See, हमें यहाँ पर क्या मिला? triangle ADB is similar with triangle ABC, and in second case what we have, triangle ABC is similar with triangle BDC. ओके जैसा हम कहते हैं ट्रायंगल A अगर सिमिलर है ट्रायंगल B के साथ और ट्रायंगल B सिमिलर है ट्रायंगल C के साथ, देन व्हाट वी कैन राइट, A इज सिमिलर विथ C. ओके उसी तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रायंगल ADB इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC. ओके so therefore from 1 2 and 3 we have triangle ADB is similar with triangle BDC and BDC is similar with triangle ABC, और इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी कहा जाता है. ओके अब हम हमारा एक्चुअल थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं. Here is the statement. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. And here is the figure of right angle triangle ABC. Okay. So अब हमें इसमें लिखना है given. So हमें जो दिख रहा है फिगर में और स्टेटमेंट में जो गिवन है वही हम गिवन में लिखते हैं. ओके सो हमारा गिवन होगा इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री. ओके इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही तो हम गिवन में उतना ही लिखेंगे. दैट इज इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके उसके बाद टू प्रूव होता है. इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है. ओके सो अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा हमें प्रूफ क्या करना है. सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके यहाँ तक कि हो गया ये स्टेटमेंट. आगे वाला जो पार्ट है उसको हमें प्रूफ करना है और वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस है AC. ओके सो AC का स्क्वायर इक्वल है किसके, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. इट मीन्स दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा टू प्रूव. ओके AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वन मोर थिंग इज हेयर दैट इज कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC दैट इज ऑन हाइपोटेनस है ना. सो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेगमेंट BD ऑन साइड AC. ओके और ये हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया ये आपको प्रूफ में पता चल जाएगा. ओके बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ you can see here we have taken two figures. It is original figure triangle ABC and this is second figure. okay ये दोनों भी फिगर सेम है बिल्कुल. we have just cut this first figure from segment BD. okay so हमें क्या मिल रहा है, दो ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल हमें उसमें से मिल रहा है. दैट इज ट्रायंगल ABD and triangle BDC. So starting with proof. So first of all हम लिखेंगे in a right angle triangle ABC. in a right angle triangle ABC. ओके अभी ABC में क्या लिखेंगे हम, सेगमेंट BD जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था. सेगमेंट BD is perpendicular to hypotenuse AC. okay therefore what we have, triangle ABC which is actual triangle, ये सिमिलर है किसके साथ, सिमिलर है ट्रायंगल ADB के साथ. ओके आप सेकेंड फिगर में इसको देख सकते हो. एंड ट्रायंगल ADB इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC. ओके और ये जो हमने लिखा है ये हमने किस बेस पे लिखा है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा है. ओके सो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का सिमिलैरिटी लेंगे ADB के साथ और उसके बाद ABC का सिमिलैरिटी लेंगे हम BDC के साथ. ओके सो देखते हमें क्या मिलेगा. सो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ADB. ओके ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ADB. सो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग साइड्स वी कैन राइट
AB upon AD which is equal to BC upon DB and which is equal to AC upon AB। ओके, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। देयरफॉर अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिए एक बार फिर से राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो अगर हमें AB स्क्वायर चाहिए या फिर BC स्क्वायर चाहिए, सो इनमें से हम क्या चूज करेंगे। ओके, अब हम फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स लेंगे। अब ये दोनों टर्म्स क्यों लेंगे, तो हमें चाहिए AB का स्क्वायर। ओके, तो देखिए AB का स्क्वायर हमें किस तरह से मिलता है। सो AB अपॉन AD विच इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ओके, देयरफॉर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी गेट, AB square which is equal to AC into AD। okay, and this is our first equation। okay, AB square equal to AC into AD। okay, अब हम क्या करते हैं, दूसरे दो सिमिलर ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, और वो कौन से होंगे, ट्रायंगल ABC यानी ओरिजिनल ट्रायंगल, and it will be similar with triangle BDC। okay, and same procedure, if these two triangles are similar then their ratio of corresponding sides are equal। okay, ये थ्योरम हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। सो AD अपॉन BD which is equal to BC upon DC and which is equal to AC अपॉन BC। ओके, यहाँ पर भी हमें जो रीजन लिखना है वो यही लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो अब हमें इसमें से क्या चाहिए, देखो अगर हम इसमें से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म चूज करेंगे यानी BC अपॉन DC विच इज इक्वल टू AC अपॉन BC, तो क्या होगा देखते हैं। BC अपॉन DC which is equal to AC upon BC। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, सो वी गेट BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC इंटू DC एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें BC स्क्वायर भी मिल गया और फर्स्ट इक्वेशन में AB स्क्वायर भी मिल गया। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इन दोनों टर्म्स को। सो एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2, so we get AB square plus BC square which is equal to AD into AC plus DC into AC। ओके, अब इन चार टर्म्स में यहाँ पर AC कॉमन लेते हैं। ओके, सो AC इंटू ब्रैकेट व्हाट वी विल गेट। ओके, यहाँ पर इंटू लिखने की जरूरत नहीं अगर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो। सो AC इंटू AD प्लस DC। ओके, विच इज इक्वल टू, अब आप अगर फिगर में देखोगे तो AD प्लस DC क्या है, AC है ना। सो AC इंटू AC। ओके, सो विच विल बी AC स्क्वायर एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हेज द प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था उसमें। After the Pythagoras theorem, let us see the converse of Pythagoras theorem. Converse means ulta. Okay, converse means opposite. So let us see its statement. In a triangle, if the square of the one side is equal to the sum of the squares of remaining two sides, it means that square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides। okay, ये statement है किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की statement है। okay, then the triangle is a right angle triangle। okay, so converse में हमें क्या प्रूव करना है, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के। ओके, तो जो गिवन एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इट मींस इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। सो हियर इज two figures are given and in given what is there in triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square। okay, हम पाइथागोरस थ्योरम में
ये चीज प्रूव कर रहे थे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम इसको गिवन में ले रहे हैं और प्रूव क्या करना है हमें, एंगल ABC इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, एंगल ABC हमें क्या बताना है 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो हमने PQR जो राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, ये हमने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, सो हमने इसको कंस्ट्रक्शन में लिखा है, दैट इज ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB इक्वल टू PQ। ओके, साइड AB के बराबर है साइड PQ, BC इक्वल टू QR एंड एंगल PQR इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, एंगल PQR क्या है 90 डिग्री है। अब हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि हमको ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, और वो हम कैसे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस अदर ट्रायंगल दैट इज PQR। सो लेट अस स्टार्ट विद द proof। So in proof in triangle PQR, अब हमारा पूरा फोकस होगा ट्रायंगल PQR के ऊपर। ओके, सो in triangle PQR एंगल Q is of 90 डिग्री। ओके, ये हमने लिया ही राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसी के हेल्प से हम क्या शो करेंगे, एंगल ABC क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो एंगल Q इज ऑफ 90 डिग्री। देन इफ angle Q is of 90 degree and if PQR is right angle triangle, then what we have PR square is equal to PQ square plus QR square, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब इफ इन गिवन कंस्ट्रक्शन में हमने ऑलरेडी ले रखा है AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR। ओके, देयर साइड्स आर इक्वल। सो अगर हम इसको रिप्लेस करें तो क्या होगा, PQ स्क्वायर इट विल बी AB स्क्वायर एंड QR स्क्वायर विल बी BC स्क्वायर, इजंट इट। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है गिवन में, देखिए गिवन में क्या दे रखा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर। सो इसको लिखते हैं AC स्क्वायर। ओके, सो अब हमें क्या मिला, देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मिला, है ना, दैट इज हाइपोटेनस भी इनकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर उनके इक्वल है तो वो साइड भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। देयरफॉर PR इज इक्वल टू AC। ओके, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent with triangle PQR। okay, with triangle PQR by which test, by side test, है ना, हमने side test पढ़ा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू side test ट्रायंगल ABC is congruent with triangle PQR। और अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent है, so it means that if PQR is right angle triangle then ABC is also right angle triangle। ओके, और वही हमको प्रूव करना है। therefore we can write angle ABC is equal to angle PQR and which is equal to 90 डिग्री। ओके, यही हमको प्रूव करना था। सो होप आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा। Thank you for watching रामानुजन मैथ्स अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर।